درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ سیگا جات میں نے پچھلی مرتبہ گزارش کی تھی کہ ان کو آپ سالو کر لیں، بالکل صحیح کی طرح ہے۔ جس طرح صحیح کے ابواب ہیں اسی طرح محموز کی بھی گردانیں ہیں، اور مضاف کے قواعد میں نے پڑھا دیے تھے، اور ان کی گردانیں میں نے یہ گزارش کی تھی کہ احمرہ یحمرو کی جو گردان ہے اس کے مطابق تقریباً اس کے صرف صغیر صرف کبیر ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ تو پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے اگر کسی کو کوئی اس محموز کے سیگوں میں سے کوئی سیگا پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی اور اس کے علاوہ جو اسباق ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی۔ سر جی، یہ جو مضاف کے جو صیغے تھے اس میں جو سب صغیر تھی، میں دیکھ رہا تھا اس میں جو مجہول کا لم لم یمدا بنے گا، تو لم یمدا لم یمدو پھر اس پہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ وہ تو جو قاعدہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ما قبل کے اوپر اگر ضمہ ہو تو پھر آپ یہ مدو پڑھ سکتے ہیں، وہ تو پھر یہ صرف وہ دوسرے۔ میرے میرے خیال میں مجہول میں چار طریقوں سے نہیں پڑھنا چاہیے، وہ تین طریقے ہی اس میں چلیں گے۔ وہ باب الصرف میں وہ چاروں ہی لکھے، بلکہ اس میں لکھے ہوئے ہیں چاروں نا، جو یہ ہے آگے جو انہوں نے گردان دی ہے سب سے، تو شاید انہوں نے ٹھیک۔ پیٹرن کی وجہ سے لکھ دی ہے یہ چکر۔ ہاں، وہ اس وجہ سے شاید لکھتی ہوگی کہ مدہ یا مدو کی اوورال گردان میں معلوم کے سیغوں میں وہ اسی طرح چاروں طریقے ہیں تو انہوں نے مجہول میں بھی، لیکن میرے خیال میں جو مجہول کی گردان ہے اس میں چار طریقے قاعدے کے حساب سے نہیں بنتے۔ قاعدہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ تو یہی ہے کہ جو ہے وہ ماقبل مضموم ہو تو ہاں جی ایسے ہی ہے نا۔ جی جی، بالکل ایسا۔ اور ماقبل مفتوح یا مکسور میں جو احمرہ یا احمرو کی گردان ہے جس طرح اس پہ طریقہ کار لاگو ہو رہا ہے، باقی گردانوں میں ہو رہا ہے، تو مجہول میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ یہ یمدو کے مجہول میں چار طریقے چوتھا طریقہ لاگو کریں گے تو پھر تو ہر ایک مجہول میں یہ طریقہ جاری ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں تین ہی طریقے چلیں گے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی، یہ سیگا جات ہے، میں ان میں سے کوئی چیز پوچھنی ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر آگے بڑھیں۔ ویسے آپ میں سے کسی نے سالو کیے ہیں یہ؟ سب سے ریل تو سر میں نے دیکھی تھی، سیغے بھی نہیں کہ سب وہ آج ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے سب سے چلیں ایسا کرتے ہیں نا، میں جلدی سے نا آپ کو یہ 15-20 منٹ کے اندر اندر نا یہ جو سیگا جاتا ہے صرف آپ کو اتنا کر دیتا ہوں کہ ابواب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ابواب جب ڈسکس ہو جاتے ہیں نا، اگلی گردان صرف صغیر نہیں صرف کبیر کیا ہے وہ آگے کی طرف جانا آسان ہوتا ہے۔ تو جو تھوڑے سے صحیح کے سیگے بھی 15 منٹ کی ہم یہ ریکارڈنگ اسی پہ کر لیتے ہیں، پھر آگے سبق کی طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ مجھے دل کو تسلی ہو جائے گی کہ چلیں جی کچھ سیگے بھی آپ کو آپ کے سالو ہو چکے ہیں۔ جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ مسکتن کون سا باب ہے؟ سب فال۔ ٹھیک ہو گیا، اور واضح ہے میم آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ اسم فاعل قسم کی الفاظ۔ گردان ہے۔ جی اچھا، اسم فاعل، اسم مفعول یا اسم ظرف، تین آپشن ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ زیر بتا رہی کہ اسم فاعل ہے۔ جی ڈاکٹر مدثر صاحب، لیذهبن یہ کون سا باب ہے؟ جی لیذهبن، جی جی شاہ ولی خان صاحب۔ جی ہاں جی، لیذهبن کون سا سی ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ میں باب جو صرف ہے جی جی فاتحہ یفتح، جی بالکل، باب فاتح یفتح ہے، اور گردان کون سی بنے گی؟ ہاں جی، وہ جو ہے فعل مستقبل موقت باللام ونون تاکید ثقیلہ بالکل ٹھیک ہے، وہی گردان بنے گی، معلوم۔ چلیں جی جی بالکل۔ چلیں جو سیگا ریپیٹ ہوگا
बाब रिपीट होगा, मैं उसको बस खुद ही बता दिया करूंगा। मुर्शिदूना, या आपने मुस्कितुन की तरह देखें, अरशद युरशिद इरशाद बाब इफ़ाल है। जी शाह अली खान साहब, मुतकाबिलूना कौन सा बाब है? ये बाब मुफ़ाइल सही। बाब, काबल यतकाबलु, ये बाबी मुफ़ाइल। नहीं मुफाअला, वैसे मुफाअला होता है लफ्ज, आला। लेकिन गौर करें मुफाअला में कहीं ता आ रही है, यानी उसका जो इसम फाइल आता है वो तो आता है मेरे ख्याल में मुकातिलूना, मुकाबिलूना। क्या यानी बाब तफ़ाउल, मुकाबिलूना? बाब तफ़ाउल सही। हाँ बाब तफाउल है। कौन सा बाब है? बाब बाब तफ़ाउल। तफाउल, जिसमें अलिफ हमें बता रहा है और ता बता रहा है। जी तो जी। मुकाबिलूना और मुतकाबिलूना में क्या फर्क हुआ? ता का। हम्म। तो ये ता ने हमें बताया कि ये बाब मुफाअला नहीं है बल्कि बाब तफाउल है। चलें, मीम बता रही है कि इसम फाइल, इसम मफूल या इसमें ज़र्फ। देखें ये पहली नज़र पे हमें पता चलना चाहिए कि मीम का क्या असर है। चलें आगे बढ़े। अतर भाई, ततआक़बू कौन सा बाब है? सारी बाब तफाउल है। जी बिल्कुल, ये बाब तफाउल है। और गर्दान कौन सी बनेगी? बाब गिरदान बनेगी उस्ताद जी, वाहिद, मुजक्कर, नहीं नहीं, वो तो सीगा है ना गर्दान। गायब। नहीं, वो आप सीगा बता रहे हैं ना। जी गर्दान, यानी फेल माजी है, मुजारे है, मुजारे की कौन सी किस्म है, अमर है, नहीं है, कौन सी गर्दान बनेगी? मुजारे उस्ताद जी, हाँ फेल मुजारे मुजारे उस्ताद मुस्बत जी, मालूम। पूरा नाम लेंगे, फेल मुजारे मुजारे उस्ताद मुस्बत। जी, जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मस्बत मालूम। चलें, जी शुक्रिया। उस्ताद जी आ रही है। सीगे में दो ऑप्शन है। एक वाहिद मुन्नस गायब भी हो सकता है, और वाहिद मुजक्कर हाजिर भी हो सकता है। ये दो सीगे तताकबु बन सकते हैं। अब जब ये मतन के अंदर, टेक्स्ट के अंदर ये लफ्ज आएगा, तो सियाको सबाक आपको बताएगा कि कौन सा सीगा आपको बनाना है। जी आगे दोबारा वापस चलते हैं। साकिब साहब, ज़ारिबू जी कौन सा उस्ताद बाब है? जी, ज़राबा यज़रिबु बाब है और इस्मुल फाइल है और जमा है। ज़ारब यज़रिबू, देखें ये सीगा कैसे धोखा देता होता है। ज़ारब यज़रिबू तो बाब है, लेकिन ये मादा कह सकते हैं आप, लेकिन बाब ज़ारबा नहीं है। गौर अच्छा। करें जरा। अच्छा फाइल। जी, वो तो ज़ारिबू ना बनना चाहिए, जो आप सीगा कह रहे अच्छा हैं वो अच्छा कौन जी सा सीगा? जी जी जी, वो ज़ारिबु ना वो बनना क्या चाहिए। बनना चाहिए? ज़ारिबु ना। ज़ारिबू ना। ये तो है ज़ारिबू। जी, ज़ारिबु। हाँ जी, ये सीगे में ना अक्सर फंस जाते हैं। का कौन सा बाब होना चाहिए? कोई और बता सकते हैं वैसे, बाबे बताना चाहे? बाब, बाबे मुफाला फिर होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ पहुंच गए हैं। जी जी। बाब मुफाला। जार बाजार बाजार जी। जी, यानी ये बाब मुफाला है। और गर्दान कौन सी है? गर्दान जो है माजी की है और जमा का सीगा है वाक़ायब का। बाब मुफाला का कोई फार्मूला गर्दान पढ़े जरा, माजी की। जी काबला काबला काबलू काबलत काबला था। हाँ काबलू। अब जी। काबलू और जारबू होना चाहिए, ये तो जारिबू है। हम्म, जी, ये फिर उसमें होगा जो उसका जर्फ होगा। नहीं जर्फ में देखें, मैं अभी तो कह रहा हूँ मीम जहां नजर आएगा ना, जी जी फिर वो आप इसमें फाइल, इसमें मफूल और जर्फ, ये तीन नाम में से कोई ले सकते हैं। मीम है नहीं। वैसे आसान है ये। कातिलू फी सबीलिल्लाह, अक्सर आप कुरान पाक में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ जी हाँ जी। वो क्या होता है?
कातिलू, अक्सर अमर वकातिलू। जी अमर, अमर का सीगा। हाँ, जी। जी जी, अमर का सीगा है, जारिबू, मुहम्मद है उस्ताद जी। जी जी। जाहिदू, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन। तो हाँ जी। ये सीगा अक्सर इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। तो कौन सा सीगा है? जमा मुजक्कर हाँ हाजिर और जी। फेल अमर हाजिर मालूम। जी जी। चले तो आगे बढ़ते हैं। मुजदजिरुन, जी डॉक्टर साहब। मुजदजिरुन। अच्छा, तर्जमा फिर आप बाद में देखते रहना, ये मैं थोड़ा सा सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ कि मुझे खुद भी महसूस हो रहा है कि ये सीगे मकसूद होते हैं सॉल्व करना, ये आपके होने चाहिए कुछ। जी, मुजदजिरुन, डॉक्टर मुदस्सिर साहब। जी। खालिद साहब नहीं आए आज? नहीं, खालिद साहब कह रहे थे कि उनको ये टाइम नहीं करता सूट ना, चलें तो शायद चलें। ये ध्यान देना मुझे। जी हाँ जी डॉक्टर साहब, मुजदजिरुन। चलें, कोई भी बता दिया जी करे जब। ये हाँ हाँ, बताएं जी। बाब कौन सा है? सबसे पहला सवाल ये होता है कि बाब कौन सा है। फाल अमल। रुबाई का है। आ, वैसे ये उसूल हमने कायदा सही के अबवाब में हमने पढ़ा था कि अगर, वैसे रुबाई नहीं है ये तो अच्छा मैं पहले, हाँ रुबाई नहीं है। अच्छा। अच्छा, रुबाई में अगर हो भी तो यानी इस तरह पैटर्न नहीं होता, वो लफ्ज होता है जैसे मुदाहरिजुन, मुदाहरिजुन। अच्छा अब उसकी जो जी। हरकत सकनात है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इसकी और है। उसमें दूसरा हरफ मुतहर्रिक है, ये दूसरा हरफ साकिन है। तो ये मैं इसको सही करके लिखता हूँ, ये लफ्ज है मुजताजिर। लफ्ज क्या है? हम्म। अब आप जरा पहचान गए होंगे क्या होना चाहिए। कौन कौन सा बाब है ये? मुजताजिर। ये अलामत मैंने बाब लिख बाब दी है गोया। इफ्तियाल। जी बिल्कुल, बाब इफ्तियाल है ये। और ये आपने उसूल पढ़ा था कि बाब इफ्तियाल के फा कलमा के मुकाबले में जी जा, और इसी तरह एक और लफ्ज था, यानी जा है, एक और दाल 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 दाल, ये तीन हरूफ आ जाएं तो उस सूरत में बाब इफ्तियाल की ता को हम किस में बदल देते हैं? दाल से। किससे बदल देते हैं जी? दाल। हाँ जी। तो ये कुरान पाक में सूरह कमर में गालबन ये लफ्ज आता है। तो मुजदजिर, मुजतजिर तजरा मादा है। जब बाब इफ्तियाल की फा कलमा के मुकाबले में जा आया तो हमने ता को इससे बदल दिया, दाल से। दाल से। चले आगे आगे, बिल्कुल वाजे है ये, इसम फाइल की गर्दान है क्योंकि मीम और कसरा, ये दो चीजें आपको बता रही है कि कौन सी गर्दान है ये, इसम फाइल की। इसम चलें आगे फाइल। बढ़ते हैं। यस्समाऊना, जी किन की बारी? शाह अली खान साहब। ये सही बाबी तफील। नहीं 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 नहीं, फ़अल ये, युफ़अल। हाँ ये लेकिन आप इस तरह सीगा बना नहीं पाएंगे, जरा बना के दिखाएं बाब तफील को, फार्मूला गर्दान पढ़ के देख। काट है ना, फ़अल युफ़अल तफ़ील। हाँ जी, फिर ये सीगा बनाए जरा, वजन क्या होगा फिर? यसम्माऊना यफ़अलूना। हाँ तो लेकिन वो यफ़अलूना तो नहीं है ना उस बाब में। जी जी। जी कोई बताना चाहेंगे? हाँ जी, कोई बता दे। ये भी कायदा इस पे लगा हुआ है और आपने पढ़ रखा है। जी
उलमाए बाब दीन। तफा और ये वो जो तफाउल का जो कायदा है वो तो नहीं पड़ेगा। जी जी जी, बिल्कुल आप सही पहुंचे हैं, बाब तफ़ाउल है। और बाब तफ़ाउल में हम जब कायदा लगाते थे ना तो इफ़ाउल बना देते थे। जी क्या बना इफा देते थे? इफा जी जी। जी शाह अली खान साहब, समझ आ गया? जी जी सही। तो असल में मादा था सामिया। इससे जब आप बाब तफ़ाउल पे जाते हैं तो क्या बनता है? तसम्मा, यतसम्माउ। तसम्मा, ये तस्म। यतसम्माउ। तो अब यतसम्माउ को जब आप बाब इफ़ाउल पे यानी शिफ्ट करना चाहें तो ता को सीन करेंगे और सीन का सीन में इदगाम करेंगे तो ये बन जाएगा यस्सम्माउ। क्या बन जाएगा? ये सम। ये याद रखें, जब भी डबल शद आ रही हो फा कलमा पे और आइन कलमा पे, तो समझ लेना कि वो बाब तफ़ाउल है। जब डबल शद आ रही हो फा कलमा पे और आइन कलमा पे, तो वो बाब तफ़ाउल है। और इसी तरह अगर फा कलमा के ऊपर शद आ रही है, देखें सर्रफा युसर्रिफु, बाब तफ़ईल में आइन किस पे शद आ रही है? आइन कलमा पे। आयन। इसलिए आप उसमें मिक्स नहीं करेंगे। अगर मिसाल के तौर पर एक बात जो आप यानी अ, कुरान पाक में जो फद्दारअतुम आता है, इद्दारा यद्दारउ, अब यहाँ किस पे शद आ रही है? फा कलमा के ऊपर किस पे शद आ रही है? इफ़ाअला। तो ये, और अलिफ भी आ रहा हो, फा कलमा पे शद हो और बाद में अलिफ आ रहा हो, तो ये आपने इसको बाब तफाउल कहना है। कौन सा बाब कहना है जी? तफाउल। तफाउल। और इसका सीगा भी मेरे ख्याल में यहाँ रिपीट आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ आएगा। ये देखें, इस तुम कुरान पाक में भी ये मादा इस्तेमाल हुआ है कि इन फिरू खिफाफा व सिकालन। ये यहाँ कहीं ये इस तुम आता है, लफ्ज आता है कि नहीं? जी। तो इस साकला, ये भी वही है जो बाब इफ़ाउल है। तो इन दो को पहचानना आपके लिए ये निशानी है कि अगर फा कलमा और आइन कलमा पे शद आ रही हो और हाँ, तो उसको आप बाब तफाउल में कहेंगे। और अगर फा कलमा पे शद आ रही है उसके बाद अलिफ आ रहा है तो बाब तफाउल बनता है। चलें, यस्सम्माऊना जब आप यतफ़अलूना बना चुके हैं, यतसम्माऊना असल में था, क्या था जी? यतसम्माऊन। चले आगे बढ़ते हैं। या तरब्बसूना, अब आप देखें वही सीगा है जो यस्समाऊना का सीगा है, वही या तरब्बसूना का सीगा है, लेकिन यहाँ मद नहीं हो सकती क्योंकि मद होने के लिए आपको पता है कि बाबे तफाउल और तफाउल में फा कलमा के मुकाबले में कौन कौन से हरूफ थे जी? जी, आपने शुरू हो जाना है सा से, जी ठीक है? ता, जीम, और उसके बाद हा खा को छोड़ के दाल, दाल दाल, जाल रा को छोड़ देना है जा, सीन, शीन, स्वा, ज़ा, त्वा, वा तक। ठीक है, ये तरतीब आपने याद रखी। मैं दोबारा लिखता हूँ, ता, जीम, हा खा को छोड़ के, फिर उसके बाद जी दाल, दाल, रा को छोड़ देना है जा, सा सीन सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, त्वा और त्वा। ये हरूफ हैं जहाँ फा कलमा के मुकाबले में बाब तफाउल और तफाउल में आ जाएं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? बाब तफाउल की जो फा है, जो सॉरी ता है, उसको उसी हरफ में बदलें और उनका आपस में इदगाम कर दें। ये बिल्कुल ठीक है, जायज़ है, ऐसा करना जायज़ है, वाजिब नहीं है बहरहाल। चलें आगे बढ़ते हैं। या तरब्बसूना वही सीगा हो गया। इश्ताअला, जी किनकी बारी है अब? अतहर भाई। इफ्ताला उस्ताद जी। जी इश्ताअला कौन सा बाब है? बाबे इफ्तिहाल। जी बाब इफ्तियाल है। बाबे इफ्तिहाल। और गर्दान कौन सी है? वाहिद मुजक्कर गायब। चलें ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं।
वाली युमहिसा। जी साकिब भाई अब जरा आप। जी फसा ये महसूस, ये तो बाब तफील है। हाँ, ये कंफर्म हो गया कि बाब तफईल है, और जी इसलिए कि इसके आइन कलमा में शद आ रही है। ठीक जी। हो गया। तो आप इसको कौन सा बाब कहेंगे? बाब तो हो गया, गर्दान कौन सी कहेंगे? ये महसा जो महसूस है, तो ये अमर की गर्दान होगी, मालूम की। नहीं, अमर की गर्दान में एंड पे हाँ जी, वो सुकून आता है। जज्म आनी चाहिए, सुकून आनी हाँ चाहिए। जी। वाली जो इस्लाम, फिर इसमें अ, ये ना लाम कई है। कौन सा है? लामे के। अच्छा। लाम कई के बाद अन मुकद्दर होता है, और अन की वजह से फेल मुजारे क्या हो जाता है? मंसूब। तो तो आप इसको नाम तो क्या देंगे? फेल मुजारे। क्या नाम देंगे? फिर मतलब मुस्बत मालूम। और अलबत्ता इसमें लाम आने की वजह से अन आया, अन ने क्या कर दिया? इसको जबर दे दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे बढ़ें जी। डॉक्टर साहब आपकी बारी है। तस्कुतीना। तस्कुतीना कौन सा बाब होना चाहिए? बाब नसर, न, सकत यसकुत। जी बिल्कुल, बाब नसरा यंसुरु है, और साकता यस्कुतु। तो बिल्कुल। और गर्दान कौन सी होनी चाहिए? और सीगा भी। गर्दान तो ये फेल मुजारे मुस्बत मालूम, जी और सीगा, सीगा जो है वो अ, वाहिद मुअन्नस हाजिर। जी, वाहिद मुन्नस हाजिर, बिल्कुल ठीक हो गया। चले आगे बढ़ते हैं जी। शाह अली खान साहब, लवाक लवाकिहा। जी। लवाक़िआ, लफ़ाइला। नहीं 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 वज़न। नहीं। चले, आप अंदाजा लगा रहे हैं, लफाइला। तो हाँ जी, हर जगह लाम जायद भी तो नहीं हो सकता ना। अरसलना रियाह लवाकिहा, आपने अगर तर्जुमा पढ़ा हो तो उससे अंदाजा, थोड़ा सा गैस मिल जाएगा आपको। अरसलना रियाह लवाकिहा। तो कोई तर्जुमा बताएगा जी, लवाकिहा का क्या माना है? वहां हमने किस तरह की हवाएं भेजी? जी, बगैर देखे, मोबाइल खोल के तर्जुमा खोल के नहीं बताना। अच्छा जी। चले, कोई बताएगा इसका वजन क्या होना चाहिए? वजन से आपको आइडिया हो जाएगा कि। मफाइलु नहीं उस्ताद जी, मफाइलु। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, मीम तो है ही नहीं इसमें। मीम है कहीं? नहीं उस्ताद जी। हालांकि ये आसान सीगों में से है, तंग करने वाला जरूर है ये। जैसे जारिबू ने तंग कर दिया था, हालांकि आपने बाद में देखा कि सीगा तो बहुत आसान सा था। ये भी उसी तरह का सीगा है। ये इसमें फाइल उस्ताद जी, हाँ और जी, लाम कहाँ? जायदा। लाम जायद इसम फाइल कोई दो, मिसाल दो फिर हमें, जहाँ लाम जायद हो और इसम फाइल हो। मेरे ख्याल में तो कहीं नहीं है ऐसा। जी सोचें जरा। मैं उस्ताद जी। हाँ जी। चले, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। आपने एक लफ्ज पढ़ा होगा, नवासिरा, जवारिबू। जी याद आ रहा है? जब हम उनको नासिरतुन, नासिरतानी, नवासिरु का नासिरातुन, कायदा। नवासिरु, जवारिबू। तो लाकिहतुन और लाकिहतानी, लाकिहातुन, आगे क्या आएगा? लवाकिहु। बेसिकली ये आप देखेंगे ना डिक्शनरी में, तो इसका मादा होता है कि ये ऊंटनी के लिए, जो ऊंटनी यानी जो बच्चे देती है,
مفید ہوتی ہے، یعنی بارشوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے لیے اس لیے اس کو استعمال کیا کہ جو ایسی ہوائیں جو بار آور ہوں، جو بعد میں بارش کا سبب بنے، جو فائدہ مند بارشیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ بیسیکلی لقوح، غالباً لقوح لفظ استعمال ہوتا ہے اونٹنی کی صفت کے طور پہ۔ تو یہ آپ ڈکشنری میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ لواقح کون سا سیگا ہے جی؟ گردان کون سی ہے جی؟ جمع تو اس نے نواسر استاد جی، نواسر۔ اس میں فاعل اسم فاعل اسم کی ہے فاعل ہے اور جمع کا اور صیغہ اسم فاعل جمع مؤنث مکسر کا سیگا ہے۔ کون سا سیگا ہے؟ جمع مؤنث۔ مکسر کا سیگا ہے۔ اور اس کا باب جو ہے کیا ہونا چاہیے، میں ایک منٹ ڈکشنری سے آپ کو بتا ہی دوں۔ ہاں جی، لاقیہ یلقاہ، باب سامع یسمع، اونٹنی کا حاملہ ہونا، گابھن ہونا، ٹھیک ہے۔ تو لقوح لواقہ، یہ اونٹنی کی بطور صفت کے استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں چونکہ لواقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے ہواؤں کے لیے بھی یہ لفظ بطور آپ جو صفت کے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا حوالہ شاید انہوں نے قرآن پاک میں دیا ہوگا، لغت میں دیا ہوگا اس کا۔ چلیں، تو باب سامع یسمع ہوا، کون سا باب ہے جی؟ یہ آپ تفصیل سے دیکھ لینا، میں صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ جو اونٹنی کی صفت کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہواؤں کی کے لیے بھی، ہواؤں کی صفت کے طور پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ المثالجو، جی جلدی سے، کن کی باری ہے؟ المثالجو، میری استاد جی ہے۔ ہاں جی بتائیں جی۔ استاد جی میری تو سوئی مفاعل پہ اٹکی ہوئی ہے، پتہ نہیں نہیں یہ آپ کا وزن ٹھیک ہے، اس پہ تو بالکل صحیح ہے کیونکہ میم ہے نا، مسالجو مفاعلو، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا نام ہے، گردان کون سی ہے اور باب کون سا ہے، یہ چیزیں اب آپ نے بتانی۔ ہاں جی، آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ایک منٹ سلاجہ، مبارک۔ سلاجہ کسی نے لفظ سنا ہے؟ سلاجہ جی استاد جی، جی کو کہتے فریج کو استاد فریج، جی۔ ہیں، ہاں فریج، فریزر، یعنی اس کو آپ سلاجہ کہتے ہیں۔ تو سلاجہ یسلجو، یہ اسی معنی میں استعمال ہوگا غالباً۔ باب آپ کا جی ناصر یم سرو ہے، سلاجہ یسلجو سلوجن، پانی کا ٹھنڈا ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اسی سے آپ مسالج، مسالج آپ بتائیں کون سی گردان میں جائیں گے، صرف کبیر کون سی ہوگی؟ ویسے تو یعنی اس اگر میں باب مفعال ہے استاد جی، نہیں، باب مفعلہ کہاں فعل سے؟ یفعل۔ آپ نے مناصر کا لفظ نہیں سنا؟ منصر، منصرانی، مناصر، اس میں جی اعلیٰ استاد جی، جی جی، تو اس وہ میں یہ ہے، اعلیٰ۔ ہاں اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف بھی ہو سکتا ہے، منصر، منصرانی، مناصر۔ تو یہ مفاعلو کا جو وزن ہے یہ ثلاثی مزید فی میں بھی نہیں آتا۔ ثلاثی مزید فی میں اگر آئے گا نا تو اس کی ایک ہی صورت ہوگی کہ میم کے اوپر کیا ہو، پیش پیش پیش، جی جی ضمہ۔ بالکل، ہاں ضمہ ہو۔ تو یہ میم کے اوپر زبر جب ہو تو یہ کس میں آ جائے گا؟ ثلاثی مجرد کے اندر آئے گا۔ تو یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، یعنی ٹھنڈا کرنے کا آلہ۔ تو یہ جمع ہے، مسلج اس کی جمع بنا لیں، یا پھر ٹھنڈا کرنے کا وقت یا جگہ، تو یہ یعنی اس میں ظرف کے طور پہ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ چلے آخری صیغہ آج کا، لیغتسلنا، لیغتسلنا کن کی باری ہے جی ثاقب بھائی؟ افتعل یفتعل، اغتسل یغتسل، اور جی اس میں یہ گردان جو ہے یہ جو ہے فعل امر ہی کی ہے استعمال، اور ہاں لا ہاں محض اور یہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے غائب، ہاں، جی جی بالکل اور صحیح ہو کیونکہ گیا۔ وہ مبنی ہوتا ہے تو اس لیے پھر وہ استفہام ہاں، نون، نون جمع مونس کا ہے تو وہ گرتا نہیں ہے۔ جی جی، اس بنیاد پہ آپ اس کو لام کئی بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ آپشن اچھا ٹھیک ہے، دونوں جگہ آپ اس کو، یعنی ظاہر سی بات ہے جس طرح لام امر اثر نہیں کر رہا تو جی لام جی کئی جی، بھی اس پہ اثر نہیں نہیں کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں یہ ریکارڈنگ ادھر ہی ختم کریں، پھر ہم اگر سبق کی طرف